Hello everyone, hope all of you are doing very good. I am Aryan and currently I am a final year student at Sriram College of Commerce. And today I am here with my friend Manan Singhal, who is currently pursuing BMS from Shahid Sukhdev College of Business Studies. So today in this video, we will be discussing about the BMS course. So let us first allow Manan to introduce himself. Thank you, Aryan. So, hello guys, this is Manan Singhal from Shahid Sukhdev College of Business Studies. I am currently pursuing BMS, that is Bachelor of Management Studies, and I am currently in my third year. I interned with the Bajaj Group, and I am currently placed at Willis Towers Watson. Yes, Aryan, we can go ahead. सो बेसिकली आपको यूट्यूब पे काफ़ी जगह ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पर आपको बीएमएस कोर्स के बारे में और आप कौन कौन से कॉलेजेस बीएमएस ऑफर करते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा बट जो इस मेन वीडियो का एजेंडा है वी वांट टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अ बीएमएस स्टूडेंट कि आप अगर बीएमएस करते हो तो उसके अंदर आप अपने कॉलेज के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो देन हाउ इज़ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द कोर्स सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स सो नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो. So, Manan, let us first start with the CUT eligibility and the colleges offering BMS. So, you can go ahead. Yeah. So, if we first talk about the CUET eligibility, so we need three things. So, first is maths, then is any one language, and then general test. And then, if we talk about the colleges that offer BMS, so here we have Aryabhatta College, College of Vocational Studies, Deen Dayal Upadhyay College, Keshav Mahavidyalaya, Ramlal Anand College, Ramanujan College, Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women, Shahid Sukhdev College of Business Studies, and Shri Guru Gobind Singh College of Commerce. Yeah. So ये सारे colleges हैं जो BMS offer करते हैं and these are written in the alphabetical order. So, if you want to tell the top three colleges, according to you, which are the top three colleges for BMS? All right, so if I have to talk about the top three colleges, then Shahid Sukhdev College of Business Studies comes at number one That क्योंकि is, इसकी uh, अलग 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 रैंकिंग्स आती है तो उसमें नंबर वन पे फॉर बीएमएस एंड बीएफआईआई एज वेल yeah, सो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इज एट नंबर वन लेकिन देन पीपल टॉक अबाउट दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज उसका इंफ्रा लोगों को अच्छा लगता है एंड देन वी हैव श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स वहाँ पे भी बहुत सारे uh, कोर्सेज ऑफर होते हैं एंड बीएमएस इज वन ऑफ देम. yeah. So, now let us proceed. So, if Manan, you can talk about the subjects, मतलब brief में you can, talk about which all subjects you study in BMS. तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सकते. ऑलराइट श्योर. सो बीएमएस तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें बहुत ज्यादा हम एक स्पेसिफिक कोर्स नहीं पढ़ते हैं. लाइक वी हैव इकॉनर्स. इकॉनर्स के अंदर क्या है कि मतलब मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इन डेप्थ होती है एंड मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. सो वो सब होती है लेकिन बीएमएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब ओवरऑल सारी डायरेक्शन को कवर कर लेता है. Yeah, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट तो नाम में ही आता है तो मैनेजमेंट इज कवर्ड. लाइक यहाँ पे भी लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट. yeah. देन थोड़ा अगर हम बात देखें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. So Mm-hmm. management is covered in almost all the semesters, Yeah, and then we have basic statistics, basic financial accounting and cost management accounting as well, and we learn about micro and macroeconomics as well, yeah. and we have some of the theoretical subjects as well like organizational behavior and human resource management, and then we have very cool finance courses as well like financial management, Mm. project appraisal, financing and control, and the very last one written here mergers acquisition and corporate restructuring. सो मतलब राउंड अबाउट हमको एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने को मिल जाता है एंड आई वुड से कभी बोर नहीं हुआ मैं कि सेमेस्टर हर सेमेस्टर नए सब्जेक्ट्स मिले हमको. Yeah, yeah. So this seems interesting क्योंकि हाँ जैसे यू आर सेइंग कि यहाँ पर काफ़ी वैरायटी के सब्जेक्ट्स हैं मतलब स्टैटिस्टिक्स भी है इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी हैं देन मैनेजमेंट रिलेटेड राइट. फाइनेंस रिलेटेड सो राइट. सो वी गेट अ मतलब लॉट नंबर ऑफ कोर्सेज टू एक्चुअली एक्सप्लोर एंड देखना कि हमें हाँ किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है. सो ये चीज तो मेरे को बीएमएस के बारे में काफी अच्छी लगी उसके करिकुलम के बारे में. दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज तो इफ यू कैन बेसिकली. या श्योर श्योर. सो अगर मैं अपने कॉलेज के सिनेरियो से बात करूं जितना मैंने देखा है. सो नंबर वन इज आई वुड से प्लेसमेंट जो लोगों को कॉलेजेस से मिलती है या फिर ऑफ कैंपस दे हायर दे ट्राई फॉर. सो प्लेसमेंट. एंड प्लेसमेंट्स के अंदर भी कंसल्टिंग इज वेरी वेरी मच पॉपुलर इन बीएमएस. कंसल्टिंग इज बेसिकली अगर जिसको नहीं पता सो लाइक द सिमिलर वे इफ यू गो टू अ डॉक्टर
हम्म। आप उसको कंसल्ट करते हो, वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। द सेम वे कंसल्टेंट इज समवन जो बाकी कंपनीज को उनकी प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करता है। मेरे पास कोई कंपनी आई है और हम्म। वो मेरे को कह रही है कि मेरे को अपने ऑपरेशन में दिक्कत है, मेरे को अपने फाइनेंस में दिक्कत है, एंड मी बीइंग अ कंसल्टेंट मैं उनको हेल्प करूंगा, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, उनको एक्चुअली बताऊंगा वैसे कि उनको प्रॉब्लम किस जगह पर आ रही है, उनको क्या चीज सही करनी है या एंड वो चीज करनी है। ठीक है। सो फर्स्ट इज कंसल्ट प्लेसमेंट्स के अंदर की मैं बात करूं, कंसल्टिंग इज मतलब एक टॉप नॉट आई वुड से प्रायोरिटी रैंक पे आता है कि ज्यादा बच्चे किस चीज के लिए जाते हैं। एंड देन वी हैव फाइनेंस जॉब्स। सो फाइनेंस के अंदर भी वी हैव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट। सो इन सारी जॉब्स के लिए बच्चे ऑप्ट करते हैं। देन उसके अंदर बीएमएस के अंदर मार्केटिंग की स्ट्रीम भी होती है, सो मार्केटिंग वाली ई कॉमर्स साइड ऑफ जॉब्स के लिए भी जाते हैं बच्चे। देन अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है। या सो मतलब काफी बच्चे उनको स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, अपने खुद का कुछ बिजनेस बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो काफी बच्चे अपना स्टार्टअप तो मतलब चालू करना चाहते हैं जो बीएमएस में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप, डिजाइन थिंकिंग, इनोवेशन एंड सोशल क्रिएशन, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऐसे काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स भी हमको पढ़ाए जाते हैं, जिससे बच्चों को ऐसे स्टार्टअप्स और अपने 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 आइडियाज या लाने में उनको ज्यादा हेल्प होती है। और आजकल तो वो शार्क टैंक वगैरह से भी काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं लोग, तो एंड पीपल आर मतलब काफी कि खोलते हैं। न्यू हो गए स्टार्टअप्स आफ्टर शार्क टैंक एंड ऑल। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब हाँ, उस चीज में काफी बूम है। एंड देन वी हैव रिसर्च रिलेटेड जॉब्स एज वेल, इंटर्नशिप्स के अंदर तो बेसिकली ज्यादा को रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप्स ही मिलती है। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल, उनकी मतलब दे आर एनालिस्ट, एंड एनालिस्ट के अंदर ही रिसर्च का काम होता है। एंड देन वी हैव टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स, राइट। तो ये सारे हो गए हमारे जो जॉब रिलेटेड थिंग्स है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रोफेशनल कोर्सेज, तो फर्स्ट इज एमबीए, जो बहुत एक मेरे कॉलेज की मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर एमबीए। टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है, आई एम अहमदाबाद, आई एम इंदौर, बैंगलोर, कैलकाटा। एंड इस साल तो न्यूज भी आई थी कि एसएससीबीएस के मतलब हमारे कॉलेज के 3 बच्चे आई एम अहमदाबाद के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सो मतलब यू कैन गेट एन आइडिया कि कितने सारे बच्चे इस चीज के लिए ऑप्ट करते हैं। दैट इज अ बिग थिंग। राइट। सो एंड एमबीए के बाद अगर हम बात करें ऐसे कोर्सेज की जो हम अपने बीएमएस के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि सिर्फ अपने कोर्स से कुछ नहीं होगा। हम अभी जोन सा भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे, बीट बीएमएस, बीट इको ऑनर्स, बीट स्टैट्स ऑनर्स, बीट बीएफआई फ्रॉम माय कॉलेज एज वेल, बीट एनीथिंग, सिर्फ हमारे कोर्स से कुछ हो नहीं पा रहा आजकल। या तो हम अपने प्लेसमेंट्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोर्स के अलावा भी अगर हमको एक एक्स्ट्रा नॉलेज है तो बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर हमको एक एज मिलता है बहुत बड़ा। तो उसके लिए वी हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, सीएफए जो कोर्स है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, दैट इज सीएफए। या सीएफए तो आजकल मतलब ट्रेंड पर है। देन वी हैव एक्चुअल साइंस, काफी सारे बच्चे एक्चुअल साइंस भी करते हैं, खासकर इको ऑनर्स, बीएमएस एंड स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स। देन सीए तो मतलब जिनको अकाउंट साइड थोड़ा इस साइड जाना होता है वो बच्चे कर ही रहे होते हैं पहले से। एंड देन वी हैव एफआरएम, एफआरएम हैव इंक्लूड्स 2 पेपर्स, सो वो भी काफी बच्चे करते ही है। सो अ कॉमन क्वेश्चन इज देयर लाइक कि बीएमएस करते हुए बच्चे सीए करते हैं नहीं, बिकॉज ये काफी कॉमन है कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करते हुए बच्चे सीए करते हैं, बट इन योर कॉलेज डू स्टूडेंट्स डू सीए ऑल्सो? यस। अच्छा। सो मैं मेरे कॉलेज में भी बच्चे सीए करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोपोर्शन नहीं है, हाँ। बट यस, मेरा भी एक फ्रेंड है वो सीए करता है, एंड उसका बेसिक एंड फाउंडेशन एंड इंटर लेवल पास है। एंड एडवांस के लिए तो हमको वैसे वो करना होता है, पहले इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग होती है उनकी, सीए में कोई चीज होती है वो करनी होती है। आर्टिकलशिप। एंड आर्टिकलशिप, राइट, आर्टिकलशिप करनी होती है सीए में। एंड मेरे भी दो दो फ्रेंड्स हैं जो मेरे कॉलेज से सीए कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बीएमएस के साथ सीए नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमको अकाउंटिंग्स के कुछ पार्ट पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड सेकेंड सेमेस्टर में वी हैव कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अनरिलेटेड हो जाता है। सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली ये थोड़ी फन स्लाइड होगी। सो बेसिकली इसके अंदर हम सारी बात करेंगे कि हाउ इज़ द कॉलेज लाइफ, एक्सपोजर क्या क्या है, एंड अगर आपको बीएमएस में सक्सीड करना है व्हाट इज द एक्स फैक्टर दैट यू नीड, कोर्स की डिफिकल्टी क्या है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मनन, वी कैन फर्स्ट बिगिन विद योर कॉलेज लाइफ एंड द एक्सपोजर। सो ठीक है। सो कॉलेज लाइफ के बारे में बात करनी हो तो आई विल जस्ट टॉक वेरी ऑनेस्टली। देखो, अगर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा कैंपस चाहिए, बिल्कुल ही ऐसे मूवी काइंड ऑफ कॉलेज लाइफ हो, सो मतलब उसके लिए तो नहीं है ये।
क्योंकि मतलब वी हैव अ गुड कैंपस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैंपस फ्रॉम डी, कि मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका द क्वालिटी ऑफ द टीचर, एंड the quality of the subjects we are offered, the kind of seminars we get, that kind of sessions we get in our auditorium, they are top notch. उसकी तो कोई मतलब साथ में कंपैरिजन ही नहीं। हम्म। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया ऐसे ग्राउंड है बड़ा सा, बहुत बड़ी स्पेस है, ऐसा नहीं है। लेकिन द क्वालिटी इज गुड जितनी है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपोजर आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट। हाँ। क्योंकि द काइंड ऑफ एक्सपोजर वी गेट, मतलब जिस हिसाब से हमको बंदों से बात करने को मिलता है, बाकी जो ऑलरेडी जॉब में है, या हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स होते हैं, हमारे जो पीयर्स हैं, या मतलब हर एक इंसान कोई ना कोई चीज कर रहा होता है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमको अपने साथ वाले फ्रेंड से ही इतना कुछ सीखने को मिलता है। वी आई मतलब मैं तो अपने आप ही इतना ज्यादा इंस्पायर होता हूँ अपने फ्रेंड से। द पीयर ग्रुप इज फैंटास्टिक। आई ऑल्सो अग्री विद दिस, लाइक मैं भी एसआरसीसी से हूँ, सो यहाँ पर इन कॉलेजेस में द क्राउड इज वेरी ग्रेट, मतलब कि हर बंदा कुछ ना राइट। कुछ कर रहा होता है, तो यू आर ऑल्सो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड टू डू समथिंग, क्योंकि अगर और लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट सिटिंग, तो यू गेट इनटू अ फोमो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टॉप कॉलेजेस, कि आप हमेशा मोटिवेटेड होते हो अपने फ्रेंड से ही, विद द पीपल अराउंड यू। सो या, आई ऑल्सो टोटली अग्री विद यू। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कैन बी द एक्स फैक्टर टू सक्सीड। देखो, पढ़ाई सब अच्छी करते हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट आप ऐसा अलग से और क्या कर सकते हो बीएमएस के साथ साथ, जो आपको अगर आपकी प्लेसमेंट्स आपको चाहिए अच्छी, उसमें हेल्प कर सके, दैट एक्स फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी दैट। सो इसके लिए तो मैं एक ही चीज कहूंगा, अपने आप को, जैसे आपने ट्वेल्थ पास कर ली, दैट इज ऑल राइट। आप कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाली, दैट इज ऑल राइट। लेकिन एक बार आप कॉलेज लाइफ में आ गए एंड आपने एक दो महीना एंजॉय कर लिया, 1 or 2 months इज फेयरली गुड टू एंजॉय, राइट। या। उसके बाद गेट इन टू वन थिंग, हम्म। मतलब आप एक चीज में घुस जाओ एंड मास्टर दैट थिंग। या। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो फाइनेंस का जितना कुछ भी रिसर्च मटेरियल है, जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स है, आपकी हमारी फैकल्टीज बहुत अच्छी है, फैकल्टी से पूछो कौन सी बुक्स उन्होंने रीड करी, कौन सी फाइनेंस की बुक्स अच्छी है। फाइनेंस के लिए यूट्यूब पे इतनी सारी प्ले लिस्ट है फॉर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर फाइनेंस। ओके, हम्म। सो फाइनेंस अगर तुम करना चाहते हो तो वैल्यूएशन की वीडियोस देखो, यूट्यूब पे इतनी सारी है। जस्ट गेट इन टू इट एंड उसको तुम इतने लेवल पे मास्टर कर लो कि आफ्टर 1 ईयर अगर कोई फ्रेंड तुमसे पूछे कि ये चीज तुम्हें कैसे आती है, तुम बताओ कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। वहां हम्म। पे जस्ट यू मतलब आपको सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। या। सब एक्स फैक्टर इज टू डू हार्ड वर्क या। विद परसिस्टेंस, या। तभी आपको कुछ ना कुछ मिल पाएगा। अगर मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आई वुड से कि मैं तो सारी बुक्स पढ़ लूंगा इकोनॉमिक्स की, सारे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आज सबसे ज्यादा आजकल के टाइम पे तो इंपॉर्टेंट है कि हम न्यूज़पेपर पढ़े। जो आजकल आसपास हमारे न्यूज चल रही है उससे हम इक्विप्ड रहे। क्योंकि आजकल जो इंटरनेशनल अफेयर्स इतने सारे हो रहे हैं, फॉरेन नेशनल अफेयर्स इतने सारे हो रहे हैं, सो मतलब ये सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो एक्स फैक्टर इज जस्ट टू बी हार्ड वर्किंग, मेक सम सैक्रिफाइसेस यार। हमेशा वी कांट बी enjoying हम्म। with here or there, we have to make those sacrifices and work hard and study well। एंड एक स्किल पे अपनी कमांड बनाओ। या। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो गो फॉर पाइथन, गो फॉर जावा, सीएसएस, वॉट एवर यू वांट टू डू। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो वैल्यूएशन वगैरह पूरे सीखो अच्छे से। एंड ये तो हो गई स्किल्स की बात। अगर आपकी स्किल अच्छी होगी तो कोई भी कंपनी आपको दूसरे एप्लीकेंट पे ऑब्वियसली प्रेफर करेगी, हम्म। क्योंकि एक एप्लीकेंट है जिसको सब कुछ आता है, एक एप्लीकेंट है जिसको कुछ भी नहीं आता। हाँ हाँ हाँ। And या। also the company would be willing to give you a higher salary if they believe that you are a better candidate। या। So यार एक स्किल अच्छे से बनाओ अपनी एंड उसको मास्टर कर लो। या। एंड देन सेकंड थिंग इज, मेरे कॉलेज में तो मतलब ये वो है कि एक बच्चा एंटर कर रहा है एंड हम्म। उसको एक चीज करनी चाहिए, एंड दैट इज केस कॉम्पिटिशन्स। या। नॉट जस्ट केस कॉम्पिटिशन, इन जनरल कॉम्पिटिशन्स। हम्म। कॉम्पिटिशन्स तो आजकल डीयू का हो गया कि या। हर रोज लिटरली कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन हो ही रहा होता है। जस्ट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन्स, जस्ट गिव योर बेस्ट। दिन रात एक कर दो, कॉम्पिटिशन्स जीतो, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल्स कॉम्पिटिशन होते हैं, यू गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। लाइक वी हैव एचएसबीसी कॉम्पिटिशन, हमारे कॉलेज से हांगकांग भी गए थे। या। एंड उसके लिए मतलब पहले तो उसका इंडिया लेवल होता है कि पहले मुंबई जाओ, फिर हाँ। वहां से हांगकांग, दे सेंड फुल स्कॉलरशिप टू हांगकांग ट्रिप। सो मतलब केस कॉम्पिटिशन जीतो। सो दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स दैट आर द एक्स फैक्टर्स टू सक्सीड। एंड यू लाइक यू टॉक्ड अबाउट केस कॉम्पिटिशन्स, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन्स जीतने के लिए नहीं है, दे एक्चुअली डू एड स्किल्स। मतलब आप
अब पहले आप अपनी पीपीटीज प्रिपेयर करते हो, यू नो सॉल्व द केसेस विच आर देयर, देन आप जो जजेस होते हैं वो भी टॉप कंपनीज से होते हैं, यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, राइट। तो दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू स्किल बिल्डिंग। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंपटीशन जीत गए एंड सीवी में आपने सर्टिफिकेट ला दिया। दीज आर समथिंग विच आर डेफिनेटली गोना हेल्प यू। एंड आई हाँ, टोटली। मतलब एक केस कंपटीशन ऐसी चीज है दैट इज क्लोजेस्ट टू कंसल्टिंग, जो हाँ आप जॉब में करोगे। हाँ। केस कंपटीशन ऐसी चीज है कि जो आपको सबसे उसके पास लेके जा सकता है। हम्म आप एक तरह से कंसल्टेंट की ही जॉब कर रहे हो वहां पे, केस कंपटीशन करते हुए। सो यू गेट एन आइडिया फॉर दैट एज वेल। और हम्म अगर आपके रेज्यूमे पे लिखा हुआ है कि दैट यू हैव वन दिस केस कंपटीशन, दैट यू हैव वन दिस बिग केस कंपटीशन, हम्म तो इंटरव्यूअर को भी लगता है ना यार, इसमें तो कुछ अच्छा स्पेशल है जो मेरे को इसको हायर करना चाहिए। सो मतलब अगर हम केस कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं, जीत भी नहीं रहे, अगर हम उसको, अगर हमें उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, हम उससे कुछ लर्न कर रहे हैं, so interview will definitely be very much impressed with you. हम्म। So now, Manan, if we talk about the course difficulty of BMS, according to you, how difficult it is? um I won't say the difficult। देखो बाकी अगर इको ऑनर्स से एंड स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स से इससे कंपेयर करोगे तो उसके सामने तो आई वोंट से डिफिकल्ट है। आई वुड से इट्स एवरेज, कि इसके साथ आप और भी कोई स्किल सीखना चाहो, और भी कोई कोर्स करना चाहो, सो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बट इट इज मैनेजेबल। तो मतलब कोर्स ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, द सब्जेक्ट्स इन द कोर्स दे आर मैनेजेबल। राइट। हाँ, ठीक है। And now one very important thing is time management. Like right now you are also pursuing actuarial, you have completed two papers, then you also have 9 plus GPA, and this is not an easy task. So how do you manage your time, and what is your advice for time management if a person is doing BMS? राइट। सो टाइम मैनेजमेंट यार एक डिफिकल्ट चीज तो है, से आफ्टर टू Hmm. एंड हाफ इयर्स एट दिस कॉलेज एक Yeah. डिफिकल्ट चीज तो हो जाती है, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था एंड फर्स्ट मंथ ही एक्चुअली, द थिंग्स वर टू मच हेक्टिक। कि Hmm. मेरे यहाँ पे ये सोसाइटी के इंटरव्यू हो रहे हैं, मैं वहाँ पे वहाँ असाइनमेंट आ गया, Yeah. मेरे को यहाँ पे अपनी एक्चुअल के लिए आई हैव टू डिसाइड, मतलब वो तो मैं अपने फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, आई हैव टू डिसाइड कि वो कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज करना है, आई हैव टू फिगर आउट अ ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स। सो इट इज डिफिकल्ट, Hmm. बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ऑफ कोर्स बहुत लोग कर रहे हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आराम से करा जा सकता है। वी हैव टू जस्ट लर्न विद टाइम। सो तो मैनेजिंग एक्चुरियल विद 9 CGPA ये डिफिकल्ट तो नहीं है हमें। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। हम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, लेकिन यस, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना आता है, Hmm. देन यू कैन एक्चुअली सक्सीड एंड एक्चुअली डू वेल विद एंजॉइंग योर लाइफ। Hmm. लाइक मैं जो टेक्निक फॉलो करता हूँ दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। अगर मैंने सोच रखा है आज मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है, देन आई कंप्लीट माई टारगेट एट दैट टाइम, एंड द नेक्स्ट डे आई एंजॉय। लाइक अभी मेरा एग्जाम आने वाला है, Hmm. लेकिन इफ आई नो कि मेरे को इस दिन कहीं जाना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली किसी के साथ भी, मैं Hmm. उससे एक रात पहले या फिर एक पूरे दिन पहले आराम से आई विल स्टडी 7 to 8 hours Hmm. एंड कंप्लीट माई टारगेट। उसके बाद आई विल गो वेर एवर आई वॉन्ट टू, एंड जितना मेरे को एंजॉय करना है। सो टाइम मैनेजमेंट है इसकी, हमको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। Hmm. हमको ऐसा भी नहीं कि हर किसी की हमने बात मान ली, हम वहां भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं। सो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल इज वेरी मच नीडेड। एंड स्पेशली अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, इसके लिए ऐसा ऐसा कोई 5 मिनट फॉर्मूला तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बता दूं, एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच अचीवेबल फॉर ऑल। टाइम मैनेजमेंट के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कंट्रोल। सेम हाँ, चीज है, अपने ऊपर कंट्रोल है तो हम किसी भी तरह चीजों को कर सकते हैं। कंट्रोल, क्लैरिटी ऑफ माइंड, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप एंड क्या करें। अगेन, अगर हमको कोई ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में है, उस हम्म चीज के लिए मोटिवेशन है। हम्म लाइक आई हैव इन माई माइंड कि मेरा एक्चुअल का एग्जाम आने वाला है, हम्म मेरा थर्ड एग्जाम आने वाला है, एंड मेरे को उसको क्लियर करना है। हाँ, सो मेरे अंदर वो डर है कि मेरे को वो एग्जाम क्लियर करना है। सो ऑटोमेटिकली मैं वो टाइम मैनेज करता हूँ। right, अपने कॉलेज के साथ साथ आई हैव टू स्टडी वेल। लाइक अगर मेरा, जैसे मेरा कॉलेज भी थोड़ा हेक्टिक हो ही जाता है, लाइक द क्लासेस आर ऑलमोस्ट एवरी डे 9 to 4 और 9 to 3। अगर हम्म मैं 9 to 4 भी मेरी क्लासेस हो रही है रोज, सो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30, yeah, नॉट सो अर्ली बट अर्ली। एंड देन अगर मैं कॉलेज से 4 o'clock लीव करूँ, तो मेरे घर से ऑलमोस्ट एन आवर अवे है मेरा कॉलेज। सो हम्म मैं 5 बजे पहुंच रहा हूँ, एंड 5 o'clock पे मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। सो इफ आई टेक अ रेस्ट फॉर हाफ एन आवर 1 hour,
उसके बाद आई हैव टू स्टडी टिल 10 or 11, अराउंड 4 hours और 3 hours पर डे. सो इट गेट्स हेक्टिक. बट अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है, कंसिस्टेंटली अपने ऊपर कंट्रोल रखा है, सो एट द एंड आपके लिए इजी हो ही जाता है सब कुछ. या मतलब शुरू में क्या है, शुरू में आपको दिक्कत होगी, बट टाइम के साथ इट विल बी अ हैबिट, और उसके बाद ये चीज़ नेचुरली हो जाएगी, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब यू डोंट हैव टू टेक राइट. प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट उसके बाद खुद ब खुद बनती रहती है, मतलब इट्स जस्ट राइट. में थोड़ा सा वो होगा हेक्टिक, बट देन यू विल बी एबल टू मैनेज। हाँ. विद टाइम आप सीखते ही हो. लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे को याद है मेरा सेकेंड या थर्ड मंथ था, इट वाज सो केओटिक की मतलब मेरा तो रोने को हो जाता था. हाँ। लेकिन जैसे जैसे हुआ, सेमेस्टर्स पास करे, मेरे को समझ आया कि आई हैव टू गिव दिस मच प्रायोरिटी टू असाइनमेंट्स, आई हैव टू गिव दिस मच प्रायोरिटी टू माय कॉलेज स्टडीज, आई हैव टू गिव दिस मच प्रायोरिटी टू माय एक्चुअल स्टडीज. या सो प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स या इज वेरी मच नीडेड. आई ऑल्सो कम्प्लीटली अग्री विद दिस कि टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटाइजिंग बहुत जरूरी होता है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, मतलब वो दैट इज वेरी एसेंशियल। फाइन। सो मनन, नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्किल्स की, मतलब बीएमएस करते हुए दो हमने इसके बारे में बात कर ली है कि आप क्या क्या और साथ में कर सकते हो, स्टिल इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सम स्किल्स। राइट. राइट. ठीक है, तो मैं अपने पीयर्स का एग्जांपल देता हूँ. हम्म। लाइक बहुत ही डाइवर्सिफाइड डायरेक्शन में मेरे फ्रेंड्स अलग अलग कुछ कर रहे हैं. हम्म। लाइक आई एम परस्यूइंग एक्चुअल साइंस. हम्म। एक्चुअल साइंस के साथ साथ भी मेरे को थोड़ा लगता है कि मेरे को सीखना है, मेरे को मजा आता है, क्योंकि आई लव आई मतलब आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स. हाँ हाँ। सो मैंने इसके साथ साथ भी फाइनेंस का सीखा है, वैल्यूएशन वगैरह, हम्म। फाइनेंस की बुक्स रीड करी है. सो आई एंजॉय दीज काइंड ऑफ स्किल्स. एंड उसके साथ साथ भी थोड़ा कोडिंग का मेरे को मजा आता है. तो आई हैव लर्न बेसिक मैथड and good amount of R. हम्म। And if I talk about my friends, then many of them are doing some kind of courses like CFA, FRM, these things. And a number of people are also learning coding. Like एक मेरा फ्रेंड है, उसको पाइथन बहुत अच्छी आती है. ये एक तो ये स्किल हो गई. एक मेरी फ्रेंड है, शी इज टू गुड एट केस कॉम्पिटिशन्स. उसका तो मतलब एक ब्रेड एंड बटर हो गया कि हर हफ्ते वो नया केस कंपटीशन कर रही है, वो नया केस कंपटीशन जीत रही है. एंड देयर आर मेनी नंबर ऑफ पीपल जो केस कंपटीशन में बहुत अच्छे हैं. या हम्म। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज डूइंग टेक्निकल एनालिसिस. उसको टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक कैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है. एक मेरी एक और फ्रेंड है, उसको इंटर्नशिप्स का बहुत ज्यादा चस्का है कि वो अलग अलग कंपनीज में जाए और उनके लिए काम करे. सो वो उस चीज में डेवलप करती है. एक्सेल, आर, पाइथन एंड पावर बीआई फॉर डेटा विजुअलाइजेशन या एंड टैब्ल्यू. ये तो मतलब ऐसी स्किल्स है जो हमारे ऐसे कंसल्टिंग टाइप ऑफ कॉलेजेस, इको ऑनर्स टाइप ऑफ कॉलेजेस, इन सब के अंदर बहुत ट्रेंडी है. या सो मतलब यही है स्किल्स में, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर आपका हम्म. फाइनेंस में है, आप उसमें अपनी स्किल्स बिल्ड करो, कंसल्टिंग में है उसमें बिल्ड करो, देन यू नो आपको थोड़ी सर्टन टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, लाइक एक्सेल वगैरह, सो ये थोड़ी सी हम्म. जरूरी स्किल्स हो जाती हैं। सो या हम्म. इस बारे में हमने बात या करी और अगर मेरे को स्किल पे थोड़ा सा और एक्सपैंड करना हो, अगर आप कॉलेज में एंटर करने से पहले एक थोड़ा सा एडवांटेज चाहिए बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, सो मेक योर एक्सेल गुड. अगर हाँ आपका एक्सेल अच्छा है ना, तो दैट मतलब एवरीवन वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, क्योंकि एक एक्सेल हाँ बहुत पावरफुल चीज है. एंड डेटा एनालिसिस में इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड थिंग्स. हाँ, और मतलब बेसिकली कोई भी आप इंटरव्यू में जाते हो, सो एक्सेल, वो मतलब जो भी इंटरव्यूअर होता है वो एक्सपेक्ट करता है एटलीस्ट आपको एक्सेल आया है, सो एक्सेल राइट. मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, सो या अगर आप वो पहले से। एक्सेल में ऐसा लगता है कि बहुत कम चीजें हैं. स्कूल लेवल, हाँ जब मैं भी स्कूल लेवल पे हाँ था, तो मेरे को भी लगता था एक्सेल क्या ही है, क्या ही करना, नंबर पुट करना है, उससे फॉर्मूला डाल के आ गए. लेकिन एक्सेल इज मोर देन दिस. हाँ, एक्सेल मतलब इज टू मच. बेसिकली या फॉरेस्ट, मतलब कि आपकी पहली स्किल बिल्ड करने के लिए इट इज़ अ गुड स्किल स्किल, एंड मतलब ये आपके काफ़ी जगह काम भी आएगी, एंड इंटरव्यूज वगैरह में भी आपसे पूछ सकते हैं, सो या I also राइट. राइट. this. And then last topic that we can cover in this video is कि मतलब कॉलेज की सोसाइटीज एंड ऑल, की सोसाइटीज क्या आपकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है, या सो वी कैन टॉक अबाउट कॉलेज सोसाइटीज नाउ। तो सोसाइटीज तो आई एम वेरी मच इन फेवर कि आप सोसाइटीज में जाओ. एंड सोसाइटीज आपका आपको डेवलप करने में होल, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्टडीज, आप किस तरह से नई नई चीजों को कर रहे हो, नई नई स्किल सीख रहे हो, आप किस तरह पे अपना एक पीयर ग्रुप बना रहे हो. क्वालिटी पीयर ग्रुप बनाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कॉलेज में. तो सोसाइटीज हेल्प उसमें बहुत ज्यादा करती है. लाइक हमारे कॉलेज में भी अलग अलग सोसाइटीज है. लाइक कंसल्टिंग सोसाइटीज की बहुत बहुत सारी सोसाइटीज होती है. 180 DC, ग्रॉन्ड, मतलब अलग अलग नाम के होते हैं. एंड देन वी हैव
PR cell of my college. Mhm. Then we have finance societies, we have HR societies, Yeah. human resource. We have placement cell society. So different kinds of societies होती है. And जब एक society में जाते हैं ना, so over the 3 years we learn a lot. Yeah, Like अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं, सो वी गेट वर्क टू डू. हमको अलग अलग लाइफ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, अलग अलग इंटर्नशिप्स के लिए काम करना होता है. उस समय बहुत चीजें सीखने को होती है. एंड देन हर एक सोसाइटी का एक एक ना एक कोई एनुअल इवेंट होता ही है. वो एनुअल इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करना, पूरा उस समय इवेंट मैनेजमेंट आता है, लोगों से बात करना आता है, अपने टीचर इन चार्ज से बात करना, अच्छे से अपने पीयर ग्रुप से बात करना, अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं वो सीखना. ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का. देन हम सेकेंड ईयर में आते हैं एंड वी मैनेज द बैच दैट इज अंडर अस. उनको मैनेज करना, उस चीज से हमें सुपरवाइजिंग स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे से आती है. एंड अगेन हमें तब भी लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए काम करना होता है एज अ ग्रुप. तो उससे भी हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है. या दिस इज वेरी ट्रू, मतलब जो आपकी टीम स्किल्स हैं एंड देन योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सब बनती हैं. एंड आई थिंक एज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट हमारे सीवी में भी इतनी चीज़ें नहीं होती. सो बेसिकली जब हम पहली बार अपना सीवी कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो सबसे पहले हाईलाइट कर सकते हैं दैट आर सोसाइटीज़, क्योंकि हम लोगों ने मेजरली 12th तक पढ़ाई कर रखी होती है. एंड अगर हमने कॉलेज में इंटर कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं करी, सो सबसे पहले हम सोसाइटीज़ को ही अपने सीवी में डालते हैं. तो अगर आप सोसाइटीज़ वगैरह नहीं करते, सो यू विल सी कि अगर आप पहली बार अपना सीवी बनाने जाओगे, यू वोंट हैव मेनी थिंग्स टू कीप इन योर सीवी. सो आई ऑल्सो थिंक दैट सोसाइटीज आर वेरी एसेंशियल, क्योंकि इससे मतलब हमारी काफ़ी स्किल्स बिल्ड होती हैं. वी आर एबल टू हैव अ गुड सीवी. सो या, आई ऑल्सो टोटली एग्री हाँ, विद. एक पॉइंट जिसके लिए मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो मैंने पहले वीडियो में मेंशन करना भूल गया. सो दैट इज इंटर्नशिप्स. या. इंटर्नशिप्स की हमने पहले इतनी बात नहीं करी, बट इन दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस इंटर्नशिप्स डू मैटर अ लॉट. या. क्योंकि इंटर्नशिप्स शो कि आप कितना सीरियस हो अपने काम के लिए, आपको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या स्किल सीख रखी है, एंड द वे यू टॉक. या. इंटर्नशिप्स डज मैटर अलॉट. मेरे कॉलेज में भी काफी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स में इंटर्नशिप करी है. काफी लोगों ने स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करी है. दे आर नॉट डिफरेंट. इट्स जस्ट अबाउट द रोल. जहाँ या. पे तुम्हें रोल अच्छा मिले, जहाँ पे तुम्हें फालतू का काम ना कराया जाए, वहां पे जाओ, ताकि यू एक्चुअली लर्न एनीथिंग. एंड जैसे जब मेरा, जहाँ पे भी मैं प्लेस्ड हुआ, वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ था. दे सेड कि तुम्हारे इतने सारे लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे इंटर्नशिप्स हैं, ये तुमने क्यों करी, इतना तुमने क्यों करा, तुमको इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आई. सो आई हैड जस्ट वन आंसर कि आई हैव टू डू दिस थिंग्स, एंड मुझे मजा आता है अलग अलग चीजें करने में. So या. they were impressed by it. They were impressed by the different number of internships in my resume and the different societies I had. They asked me for my different societies कि आपने कंसल्टेंट सोसाइटी में क्या करा, आपने पीआर सोसाइटी में क्या करा, आपने इवेंट मैनेज कैसे करा, ताकि दे गेट टू नो माई लीडरशिप स्किल्स, दे गेट टू नो माई टीम स्किल्स. या. क्योंकि हम लाइफ के किसी भी फेज में टीम स्किल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दीज काइंड ऑफ टीम skills we learn from societies and internships. Yeah, that is very true. Yeah. So we had a very good discussion with Manan today about BMS कि कोर्स कैसा है, कोर्स की डिफिकल्टी कैसी है, आप BMS के साथ साथ और क्या कर सकते हो. सो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी अगर आप BMS आगे जाकर करना चाहते हो. एंड अगर आपको और कोई भी डाउट हो, आई विल ड्रॉप इन मनन्स इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड मेल आईडी. सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन पर्सनली रीच आउट टू हिम रिगार्डिंग BMS. And of course, guys, आर्यन मेरा LinkedIn, Instagram and मेल अकाउंट नीचे डाल देगा. आई एम वेरी मच हैप्पी टू टेक ऑल योर क्वेरीज. एंड यस, work hard and prepare well for your CUET and boards. Thank you. Yeah, thank you guys. Bye.